Hello students, welcome back to my channel. Students, we are doing direct speech and indirect speech. Students, in my previous videos, I have explained you definition of direct speech, definition of indirect speech, important terms like reporting verb, reporting speech, reported speech, and we have learned rules for changes in personal pronouns in the indirect speech. We have also learned changes in tenses in indirect speech. We have also learned important words changes in indirect speech, and we have learned changes in assertive sentences in indirect speech. Students, in this video I shall explain you rules for conversion of interrogative sentences in indirect speech. Let's start, beta. So first of all we should know what is an interrogative sentence. Students, an interrogative sentence is one that asks a direct question and always ends in a question mark. Interrogative sentence is another name for a question mark. I am giving you some examples. See here, sentence number 1. Is it possible to succeed without any act of betrayal? Question mark. This is yes no question. Sentence 2. Why do I crave anything when I am dieting? Question mark. This is question word question. And third one is, do you want to feel good or to do good? Question mark. This is choice question. Students, इन तीनों सेंटेंसेस को देखकर हमें क्या पता चला है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. नंबर 1, यस नो क्वेश्चंस, यानी कि जिन क्वेश्चंस के आंसर की पॉसिबिलिटी यस में भी हो सकती है, नो में भी हो सकती है. ओके, और इस यस नो क्वेश्चन की जो होते हैं इनकी फॉर्म क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब. हियर आर एग्जांपल्स यू कैन सी. Can tigers swim? What is can? Auxiliary verb. Tigers subject and swim main verb. And last question mark. Can tigers swim? Auxiliary verb plus subject plus main verb. And second is, has the crocodile returned? What is has? Auxiliary verb. The crocodile is here subject and returned main verb and question mark. So in yes no question form is auxiliary verb plus subject plus main verb. And second question is question word questions. क्वेश्चन वर्ड कौन से क्वेश्चंस होते हैं? जो WH फैमिली वाले वर्ड से स्टार्ट होते हैं. व्हेन, व्हाट, वेयर, हु, है ना, ये सब बोलते हैं इनको क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन. इनकी फॉर्म क्या होती है? इनकी फॉर्म है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब. यू कैन सी हियर सम एग्जांपल्स आर देयर. वेयर डिड द ट्रेन स्टॉप? वेयर, व्हाट इज वेयर? क्वेश्चन वर्ड. डिड auxiliary verb and subject the train and stop main verb. And last में question mark. Where did the train stop? This question is question word question. Okay, then third one is choice question. Choice question. What is the choice question? Choice question की फॉर्म क्या होती है? auxiliary verb plus subject plus main verb plus choice 1 or choice 2. You can see here examples are there. Does she want the pink one or the black one? What is does?
ऑक्सिलरी वर्ब, यही तो मैंने फॉर्म में बोला है, देखो ऊपर, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस चॉइस 1 और चॉइस 2. Does she want the pink one or the black one? Question mark. Does ये, what is does? Auxiliary verb. She is here subject. Want is here main verb. Choice 1 the pink one है ना, the choice 2 the black one or question mark. And second example is, did Lee catch a whale or a bass? Okay, you can see here first auxiliary verb is given, then subject, then main verb, and then choice 1 or choice 2. We have learned 3 types of question. Now we shall do rules for conversion of these types of question from direct speech to indirect speech. Yes beta, rule number 1. Always use the reporting clause at the beginning. क्या होगा, कई बार कोमा इन्वर्टेड कोमा में पहले दे दिया जाता है और सेड टू पीछे दे दिया जाता है, लेकिन हम इनडायरेक्ट बनाते हुए उसको आस्क्ड वगैरह को पीछे नहीं लिखेंगे. हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग क्लोज को बिगनिंग से ही बनाना है, चाहे वो सेड टू आगे दे रखा हो या लास्ट में दे रखा हो. फॉर एग्जाम्पल, शी आस्क्ड मी, ऐसे. ओके, रूल नंबर 2, said to is changed into asked or inquired. यहाँ पे कंजंक्ट कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करके हम असर्टिव सेंटेंसेस में क्या लगाते थे, दैट, लेकिन यहाँ इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में said to is changed into asked और inquired of. इंक्वायर लगाएंगे तो साथ में प्रेपोजिशन वर्ब ऑफ जरूर लगेगी. क्लियर बेटा. रूल नंबर 3, ये ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड है. इस रूल को मैं अभी बाद में पढ़ती हूँ, पहले इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बताती हूँ. समझो बेटा. हियर इज ए चार्ट ऑफ वर्ब फॉर्म बिफोर यू. ध्यान से समझोगे. वर्ब की 2 फॉर्म्स होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं. ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मोडाल्स. समझ आई. प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन सी होती हैं, डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, डिड, वाज, वर, हैड. दीज आर प्राइमरी ऑक्सिलरीज. और दूसरी मोडाल्स, ये आपको पता ही है, कैन, कुड, मे, माइट, ought to, should, would, must, etc. दिस इज ऑक्सिलरीज. इनको मैंने दोनों में आपको बता दिया कौन सी प्राइमरी ऑक्सिलरी है, कौन सी मोडाल. दोनों है ऑक्सिलरी वर्ब्स. और दूसरा मेन वर्ब कौन सी हो गई, 2 टाइप्स की मेन वर्ब है. मेन वर्ब भी 2 टाइप्स की है, रेगुलर मेन वर्ब और इरेगुलर वर्ब. रेगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिन वर्ब्स की पास्ट फॉर्म एंड्स विद ईडी, डी और टी. जब किसी वर्ब की सेकंड फॉर्म बनानी हो वो ईडी लगे. स्टॉप की फर्स्ट फॉर्म स्टॉप है, सेकंड में स्टॉप्ड लगा देते हैं ना, तो ये कौन सी हो गई, रेगुलर. ईडी लगे, डी लगे या फिर टी लगे, ये रेगुलर. और इरेगुलर मेन वर्ब कौन सी होती है, जब वोवल चेंजेस इन पास्ट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, ईट, एट, ईटन, वोवल चेंज हुई है ना, ईट से एट में हो, या पास्ट फॉर्म जो है किस में बदले, वोवल चेंज हो जाए, दैट इज इरेगुलर मेन वर्ब. इसको आप अच्छे से समझ लेना. अब आप रूल 3 पे ही चलते हैं, वहीं पे. इफ द क्वेश्चन मार्क स्टार्ट्स विद एन ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरीज की यहाँ दोनों की बात चल रही है, प्राइमरी की भी और मोडाल्स के भी. समझ तो आ गई आपको. तब क्या करना है, डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, डिड, वाज, वर, हैड, मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल, मस्ट, कोई भी हो सकता है, दोनों प्राइमरी ऑक्सिलरी और मोडाल्स.
तब हमने क्या करना है, वी यूज इफ इंस्टेड ऑफ द ऑक्सिलरीज। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए सबसे पहला पॉइंट तो क्या हो गया, ही आस्क्ड मी, सेड टू इज चेंज इनटू आस्क्ड। उसके बाद हम उधर तो दैट लगाते थे, यहां क्या लगेगी, कंजंक्शन इफ लगेगा। कब, जब ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब एज ए क्वेश्चन वर्ड आ जाती हैं। क्लियर, एग्जाम्पल अभी दिखाऊंगी आपको। सेकंड, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, इफ द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद ए क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं, जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, विच, व्हाई। इस तरह से जब क्वेश्चन स्टार्ट होए, देन नो कंजंक्शन इज यूज्ड, तब ना तो दैट लगेगा और यहाँ पे इफ भी नहीं लगेगा। जब WH से वर्ड से, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, नो कंजंक्शन इज यूज। यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, फिर यहाँ लगेगा क्या, ना इफ लगना ना दैट लगना, क्या लगना है यहाँ पे, द डायरेक्ट स्पीच विल बिगिन विद द गिवन क्वेश्चन वर्ड। जो भी उस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड गिवन होगा, व्हाट दिया हुआ है तो व्हाट लगेगा, व्हेन दिया हुआ है तो व्हेन। जो गिवन क्वेश्चन वर्ड है इन डायरेक्ट स्पीच वहीं से वही यूज होगा। क्लियर बेटा। रूल नंबर 5, यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 चेंजेस करनी है, मेक 2 चेंजेस इन डायरेक्ट स्पीच बनाते हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। क्या करनी है, नंबर 1, मेक इट एन अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन दिया हुआ होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए क्या करना है, सबसे पहली बार हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा कंजंक्शन इफ के बाद। क्लियर, मेक इट एन अफर्मेटिव। अफर्मेटिव तभी तो बनेगा जब सब्जेक्ट पहले आएगा। क्लियर, उसके बाद है फॉरगेट अबाउट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को तो अब भूल ही जाओ, डायरेक्ट स्पीच में तो क्वेश्चन मार्क होगा ही होगा, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, पूरा बनाने के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, याद रखना है, फॉरगेट अबाउट क्वेश्चन मार्क। सारा चेंज किया आपने, पर्सन भी चेंज किए हैं, अगर कंजंक्शन भी इफ या व्हाट वगैरह लगाया है, ठीक है, लेकिन लास्ट में सब बदल के, टेंस भी चेंज किया, प्रोनाउन भी चेंज किए हैं, लेकिन लास्ट में अगर आप जो करते हो क्वेश्चन मार्क लगा देते हो, देन योर आंसर विल बी रोंग। तो प्लीज कीप इन माइंड, क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस बना देना है, हेल्पिंग वर्ब वगैरह पहले नहीं लगानी, और दूसरा क्वेश्चन मार्क भी पीछे नहीं लगेगा। क्लियर बेटा। रूल नंबर 6, कंजंक्शन दैट इज नॉट यूज्ड। ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है। सिंपल सेंटेंसेस में, स्टेटमेंट वाले में, असर्टिव में कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के कंजंक्शन दैट यूज हुआ था, है ना। इंटेरोगेटिव में कंजंक्शन दैट तो कम से कम यूज नहीं होता, क्या यूज होता है मैंने अभी बता दिया। अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो इफ, और WH वाले हैं तो WH वाला जो वर्ड गिवन है इनडायरेक्ट स्पीच में वही का वही वर्ड लगेगा। एंड लास्ट पॉइंट इज कोटेशन मार्क इज आल्सो रिमूव्ड। ये वही, ये तो हर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही है ना। तो यहाँ पे ये कोटेशन मार्क यानी कि कोमा, इन्वर्टेड कोमा भी रिमूव कर दिए जाएंगे। दीज आर द रूल्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कन्वर्शन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। बेटा आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल एक्सप्लेनिंग ऑल्सो। सेंटेंस नंबर 1, he said to me, have you done your homework? Said to will be changed into asked, comma, inverted comma will be removed. Question is starting from auxiliary verb,
If will be used, then subject will become, tense will be changed, no question mark and no quotation mark. He said to me, have you done your homework? कैसे change हुआ? He asked me if I had done my homework. You will be changed according to object because you is second person. Clear? Second sentence is, he said to me, why are you late for the class? Question mark. इसका indirect speech क्या बनेगा? She asked me why I was late for the class. Click. Clear? Third is, Rashi said to her teacher, may I go to the library now? Indirect speech. Rashi asked her teacher if she might go to the library then. Now is changed into then. Sentence number 4 is there a cafe nearby? Said Shalu to Raghav. ये बेटा सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था क्या था? ऑलवेज यूज द रिपोर्टिंग क्लोज एट द बिगिनिंग. यहाँ पे आप देखो इस सेंटेंस में क्या है? सेड शालू टू राघव लास्ट में दिया हुआ है. ठीक है, हम इंटेरोगेटिव बनाते हुए ये नहीं है कि आस्क्ड शालू राघव पीछे लगाएं, नहीं, इसको बिगिनिंग में लाना है. शालू आस्क्ड राघव क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से ऑक्सिलरी से शुरू है, इसलिए इफ देयर was a cafe nearby, tense will be changed. Okay. Sentence number 5. She said to Puneet, has Akram invited you to the party? Indirect speech कैसे बनेगा? She asked Puneet if Akram had invited him to the party. Okay beta, I have explained you all rules. You have to do more and more practice because practice makes a man perfect. Okay, have a nice day.